I'm Adil, as you already know. By education, I am an electrical engineer from NAST. और उसके बाद मैंने कुछ अर्सा गवर्नमेंट सर्विस की है. उसके बाद I had an opportunity to do masters in computer science from Georgia Tech. और it's an online degree and मैंने 2018 to 2020 degree की थी before COVID, before the online education was cool, but due to some circumstances I wanted to stay in Pakistan. It was an awesome opportunity to do this degree online. Sirenis Technologies is primarily an IT company. It's a software development company. We are closely partnered with a company of similar name in Germany. और if I give you a niche या जो हमारा speciality है, that is automotive software development for autonomous cars. So the point where the cars are yet to hit the road, उस time पे to make sure that the car is behaving as the way it should behave, that's the point where we come in, and we have clients like BMW, Audi, Carrier, etc. उसके अलावा we are also working in embedded product domain. So the closest thing I can think of right now is probably your Android cell phone. So it's a touchscreen device working on a multi-core processor running an embedded Linux. Android is an embedded Linux. But obviously our devices are more application specific depending on our customer needs. Finally, we are also working in IoT and web sector. So hardware has the ability to interact with our environment and collect data, and the software side has the ability to analyze that data very quickly. 5G is going to be another thing that will heavily contribute towards autonomous cars, on data handling, etc. So the technology is definitely going to hit Pakistan, inshallah, somewhere in future. Time maybe थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा to catch up with the pace of maybe Europe and US. सबसे ज़्यादा जो important है वो probably ease of doing business है. So it should be easy to register a business in Pakistan. It should be easy कि अगर कोई बाहर से पाकिस्तान में invest करना चाह रहा हो तो वो एक quickly without a lot of bureaucracy वो एक business establish कर सके. And then unfortunately हमारा जो economic circumstances है उसमें ये चीज़ भी difficult है कि to remit the money outside. If you want to hire a consultant outside, उसको पैसे भिजवाना, monetary dealing is a bit complex nowadays. These are the few things जिसमें government invest कर सकती है. Other than that, one of challenges that we are facing nowadays in IT industry is availability of skilled human resource. We are producing a lot of graduates, but they are not very well equipped at the time they graduate. अगर गवर्नमेंट के लेवल पे IT इंडस्ट्री के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इनिशिएटिव लाया जाए, it's easy to set up a company in Pakistan, it's easy to maneuver around tax issues, it's easy to remit money outside, and साथ साथ अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को उस पेस पे इक्विप कर सकें टू कंट्रीब्यूट एक्टिवली टुवर्ड्स द IT इंडस्ट्री, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस. अगर हम ये गैप ब्रिज कर सकें तो I'm pretty sure that inshallah we can contribute significantly to not only the economy of Pakistan at GDP at large, but overall हम एक दुनिया में impact create कर सकते हैं. हम इंडिया के साथ at par आने की बात कर सकते हैं in IT industry. I definitely hold the point of view कि हमारे schools में, हमारे colleges में at some point हमें किसी ना किसी किस्म की general coding introduce ज़रूर करा देनी चाहिए. So coding, I believe, it's not just about computers. That is obviously the most obvious use case. But coding से एक what do you say, problem solving experience आपको आता है. How to break down a big thing into a smaller set of problems and solve them independently to reach a goal. So definitely this should be somehow integrated into the curriculum. Maybe some metric level पे somewhere there जहाँ पे it's probably not an optional subject, everyone has to go through it. And उसके बाद they are free to decide their career. Definitely अगर कोई इस side पे नहीं भी आना चाह रहा, I still think whatever the side of career they choose, the programming basic scripting knowledge like Python for example will definitely come in handy in almost all industries. I think the gender ratio in IT industry is possible, particularly क्योंकि work from home, remote work, all these possibilities are now available. मगर कुछ initiatives sisters को खुद लेना है that they apply for these jobs. They don't shy away from these hardcore hand-on jobs जिसमें आपको खुद hands-on contribute करना हो. जब भी कोई female apply करी होती है किसी company की तरफ तो one of the first questions he want to ask is कि माहौल कैसा है.
इज़ इट फीमेल फ्रेंडली और नॉट, ठीक है। और अगर एक कंपनी के पास पहले ही कम फीमेल्स ऑफिस में हैं तो इट्स नॉट वेरी इनकरेजिंग। सो अगर हम जनरली जो इंडस्ट्री है, आई फील कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू आवर एथिकल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, वन ऑफ द बेटर कंट्रीज़ है, और एक IT सेक्टर एक पढ़ा लिखा सेक्टर है, इसमें इस तरह के मसाइल मेरे ख्याल से कम हैं। तो एक जनरल आउटलुक, कंपनीज अपनी ब्रांडिंग में इम्प्रूव करें, द फीमेल फ्रेंडलीनेस। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में हमने एक डेडिकेटेड कॉमन रूम रखा हुआ है लड़कियों के लिए, उसमें वो बैठ के काम कर सकती हैं, रेस्ट कर सकती हैं, वी गिव देम देयर ड्यू प्राइवेसी। इस तरह की कुछ अगर एक्टिविटी या कुछ ब्रांडिंग IT इंडस्ट्री एट लार्ज करें। हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, कोविड के बाद से हमारे पास बहुत सारा बिजनेस आया है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी नीड टू डिसाइड कि हम अपनी ट्राजेक्टरी ऊपर लेकर जाते हैं या नीचे ले जाते हैं। हमारे साथ जो अगर आप इस रीजन में देखें तो कौन से प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया एग्जिस्ट करता है, बांग्लादेश एग्जिस्ट करता है, यू मे टॉक अबाउट वियतनाम एंड फिलीपींस। सो इंडिया के साथ आई थिंक द कंपैरिजन माइट नॉट बी फेयर क्योंकि दे हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन। बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें तो अगर आप कोई भी ग्राफ देखें, IT एक्सपोर्ट का ग्राफ देखें तो दे आर प्रिटी मच कैचिंग अप विद अस, राइट। एंड अगर हमने इस टाइम पे गुड पॉलिसी मेकिंग नहीं की, हमने जो IT इंडस्ट्री को चैलेंजेस हैं वो रिजॉल्व ना किए, तो हो सकता है कि जो सारा बिजनेस फ़िलहाल पाकिस्तान की तरफ फ्लो हो रहा हो, इन अदर वर्ड्स अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्स इट कि दुनिया को पाकिस्तान नक्शे पे नज़र आ गया एज एन IT आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। तो अगर हमने ये जो हमें एक ताज पहनाया जा रहा है ये हमने ना पहना खुद, तो शायद ये ताज बांग्लादेश के पास चला जाएगा। अगर गवर्नमेंट वन विंडो ऑपरेशन को आसान बनाए, वन विंडो ऑपरेशन इंट्रोड्यूस कराए जो गालबन इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बांग्लादेश में एग्जिस्ट करता है, वो इंट्रोड्यूस कराया जाए, और उसके साथ जो टैक्सेशन के मसाइल हैं, किसी भी कंपनी को हरास ना किया जाए, टैक्सेशन क्लियर कट हो। एवरीवन हैज़ टू पे टैक्सेस बट टैक्सेशन शुड बी ईजी फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री। उसमें हरासमेंट के इश्यूज कम हो, द पीपल कैन कॉन्फिडेंटली, एक इकोसिस्टम ऐसा हो जिसमें लोग इजीली इन्वेस्ट करके ये डरे ना कि कल को पॉलिसी चेंज हो जाएगी और हमारा पैसा फंस जाएगा। तो एक कॉन्टिन्यूशन ऑफ पॉलिसी की भी ज़रूरत है। हम जब भी किसी कस्टमर को कोई चीज़ पिच करते हैं या किसी इन्वेस्टर को कुछ पिच करते हैं तो हम उसके लिए कुछ वर्किंग करते हैं, कुछ नंबर्स बनाते हैं। बेस्ड ऑन दोज नंबर्स अगर हमारे जो गवर्नमेंट के मसाइल ना हो, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ ईज़ मिली हो, हमारी HR प्रॉब्लम्स ना हो, तो दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वो नंबर्स आर काइंड ऑफ द रिटर्न्स दैट एनी इन्वेस्टर वांट्स टू सी। तो हम खुद एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे पाकिस्तान पे बिजनेस रन करें। आवर इन्वेस्टमेंट केम फ्रॉम जर्मनी एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट अगर हम जो टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान का ब्रांड है, अगर हम उसको अच्छी तरह दुनिया में प्रमोट करें तो अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वुड वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम।